Ignited Minds Tutorials, the renowned educational resource, recently uploaded an informative video on YouTube. This video focuses on the Class 9 Maharashtra State Board topic of trade. In this knowledge explanation article, we will explore the key points highlighted in their video. The tutorial video starts by explaining the concept of trade, highlighting its significance in the economy. It provides a comprehensive overview of the different types of trade, such as international and domestic trade. The video delves into the importance of trade barriers and their impact on commerce, discussing tariffs, quotas, and embargoes. Additionally, the video sheds light on the role of trade organizations and agreements, emphasizing the World Trade Organization (WTO) and regional trade blocs like ASEAN and NAFTA. It also explores the concept of balance of trade and how it affects a country's economy. Throughout the video, Ignited Minds Tutorials uses engaging visuals and real-life examples to simplify complex concepts and ensure better understanding. The explanations are clear and concise, making it easier for students to grasp the topic. Ignited Minds Tutorials' latest YouTube video on trade is an essential resource for Class 9 Maharashtra State Board students. It provides a solid foundation of knowledge on this topic, covering all crucial aspects in a user-friendly manner. Whether preparing for exams or seeking a deeper understanding of trade, this video is a valuable educational tool for learners. ओके ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रेड मतलब भाई साहब होता क्या है? व्हाट इज ट्रेड पीपल? हम ट्रेड मतलब सिंपल तरीके से आपका बिजनेस, ठीक है। ट्रेड मतलब होता है भाई साहब आपका बिजनेस। वी हैव वेरियस नीड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। वी बाय वेरियस थिंग्स टू फुलफिल दीज वांट्स। व्हेन वी बाय देम वी क्रिएट अ डिमांड फॉर देम। जैसे जैसे आप चीजों को खरीदते जाते हैं उनका एक ऑटोमेटिकली डिमांड बनता जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड और प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं। मतलब कुछ कुछ चीजें इस मकाम तक पहुंच जाती हैं कि प्रोडक्ट और जो आपका प्रोडक्ट, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी मकाम पे, जैसे अगर आप समझ लीजिए, लेट्स से यू हैव गॉन टू द शॉप टू बाय अ टूथपेस्ट। आपने देखा होगा लोग अक्सर जाकर बोलते हैं कोलगेट है क्या? उनका रिक्वायरमेंट कोलगेट नहीं है, उनका रिक्वायरमेंट टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है, कोलगेट एक ब्रांड है। लेकिन कभी कभी हम कुछ कुछ ब्रांड्स इतने ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि उनका भाई साहब एसिमिलेशन हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, ब्रांड और जो प्रोडक्ट है लोग उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लोग उसको डिफरेंस नहीं लगते। कोई जाके फोर हैंड्स नहीं बोलेगा, या कोई जाके भाई साहब आपका कोई दूसरे टूथपेस्ट का शायद नाम नहीं ले, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट वॉट एवर वी आर, वी ऑलवेज हैव अ डिमांड फॉर अवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। देयर इज अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स टू फुलफिल दीज to fulfill the demand of these products. The production of these goods is carried out. The producer supplies these goods. In other words, he sells them to the wholesale trader. तो wholesale trader के पास आता है पहले, ठीक है। wholesale trader भाई साहब फिर retailer को भेजता है। retailer मतलब ये किराने की दुकान हो गए, ठीक है। डीमार्ट भी एक टाइप का रिटेल शॉप ही है, हालांकि आपको सब्सिडाइज रेट्स में मिलता है, ठीक है। Thus, the buying and selling of goods is done to fulfill each other's needs. These who purchase are the consumers of the goods. The producer produces and the seller sells the goods. Buyers and sellers buy and sell the goods respectively. This is called trade. एक गुड प्रोड्यूस हुआ, उसका डिमांड हुआ, लोगों ने उसको खरीदा, होलसेलर से खरीदा, रिटेलर से खरीदा, वो बात की बात है, लेकिन वो बिका। जैसे ही वो बिक गया तो इसका मतलब धंधा हो गया, ट्रेड। दिस इज कॉल्ड बेसिकली बिजनेस, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई साहब। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये इंटरडिपेंडेंट है। नो रीजन ऑफ कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी कंट्री आपका सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सारे उत्पादन क्या एक कंट्री में हो सकता है, क्या एक रीजन में हो सकता है? नहीं। हर एक का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग अलग है, हर एक का ह्यूमन रिसोर्स का बैकग्राउंड अलग अलग है। तो कुछ चीजें जो एक जगह पे प्रोड्यूस होती हैं, कुछ चीजों की कमी होती है, कुछ चीजों की वैसे सरप्लस होती है, इस तरह से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। as each region has different geographical conditions, each region produces specific commodities. तो अलग अलग रीजन के आपके जोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल कमोडिटीज प्रोड्यूस करती हैं। इफ देयर इज अ पॉसिटी ऑफ अ कमोडिटी देन देयर इज अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, ठीक है। पॉसिटी मतलब क्या होती है भाई साहब? इफ देयर इज अ पॉसिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब जो चीज भाई साहब लोगों को पसंद है, ठीक है, कम में मिल रहा है, उसका एक डिमांड बन जाता है। द प्लेस वेयर देयर इज अबंडेंट। पॉसिटी मतलब क्या होती है? स्केर्सिटी, ठीक है। स्केर्सिटी, पॉसिटी मतलब होती है स्केर्सिटी। अगर स्केर्सिटी है मतलब कमी है,
अगर किसी चीज की कमी है तभी जाकर उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। कमी से ही इकोनॉमिक्स की स्टडी चालू होती है, ठीक है। द प्लेस वेयर देयर इज अबंडेंट प्रोवाइड्स सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा कोई रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सप्लायर बन जाता है, ठीक है। द सप्लाई इज डन फ्रॉम रीजन्स प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज। तो हमेशा जहां पे एक्सेस में चीजें प्रोड्यूस होती हैं वो जगह भाई साहब सप्लायर्स बन जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे आयरन, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब आयरन, ये आपके इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू में भाई साहब ज्यादा करके प्रोड्यूस होता है। जमशेदपुर हो गया, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में क्या होगा भाई साहब, आपका कॉटन जैसे मिलता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरप्लस चीजें हैं, ठीक है। वहां के जमीन को हम माइनिंग के लिए यूज करेंगे क्योंकि हमको आयरन मिल रहा है। यहाँ के जमीन को हम कॉटन की खेती के लिए यूज करेंगे। जैसे आपका पंजाब का जो जमीन है उसको हम वीट की प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। तो अलग अलग जमीनों को हम अलग अलग तरीकों से यूज कर रहे हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि सरप्लस क्या है, ठीक है, कहां पे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है। अगर हमने उल्टा कर दिया भाई साहब, महाराष्ट्र की जमीन को हम भाई साहब आयरन ओर के लिए इस्तेमाल करने लगे और छोटा नागपुर प्लेटू का जो जमीन है उसको भाई साहब अगर हम कॉटन के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने लगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट that we identify what resources are available in abundance where, कहां पे कौन सा रिसोर्स ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उसको हम उसी के लिए यूज करें तो ज्यादा बेहतर हो। इट विल बी मोर फीजिबल इफ वी यूज इट। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। Thus, supply is done from regions producing excess commodities to region facing deficit commodities to the demand. For example, apples produced in Jammu and Kashmir are sent to other states of India having a demand for it. तो जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल प्रोड्यूस होता है और यही एप्पल भाई साहब हम तक पहुंचता है, ठीक है। वहां पे सरप्लस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वहां की जमीन, वहां का क्लाइमेट, वहां का जोग्राफिकल जो एक सर्कमस्टेंस है दैट इज फेवरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स, बिकॉज ऑफ विच एप्पल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में अलग अलग चीजें अबंडेंस में पाई जाती हैं, उन्हीं चीजों को हम वहां तक पहुंचाते हैं जहां पे डेफिसिट में हो, ठीक है। Trade is an age-old concept. In ancient and medieval periods, trade was done through barter system. Barter system मतलब क्या आता है? Exchange of goods. ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बर्तन वाले जो आते हैं ये बेसिकली बर्तन देते हैं और कपड़ा लेते हैं, आजकल तो पैसा भी लेते हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, आपका बर्तन देना और कपड़ा लेना, ये आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। आज की तारीख में हमारा एक्सचेंज मीडियम क्या है? मनी, ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मनी वाज नॉट द एक्सचेंज मीडियम। ये जो आपको गांव में मेला दिखता है, ये मेला बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। और पहले के जमाने में मेला का कॉन्सेप्ट क्या होता था? मेला का कॉन्सेप्ट होता था लोग अपनी चीजों को लेकर वहां पे बैठते थे और जिसको जो चाहिए रहता था वो एक्सचेंज होता था। किसी को भाई साहब बकरी चाहिए तो किसी को जूता चाहिए, किसी के पास जूता ज्यादा है तो वो जूता लेकर बैठेगा, किसी के पास जो बकरी ज्यादा है तो बकरी। अभी भाई साहब एक बकरी और जूते का भाई साहब एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन होता था जिसको जो जरूरत है। ये मेले का कॉन्सेप्ट वहां से चला रहा है। हालांकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी मनी बन गया है। पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? गुड्स, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। जैसे कोई भाई साहब एक कोई मजदूर है, वो किसी किसान के या किसी साहूकार के घर में काम करके, उसका काम करके उसको अनाज मिलता है, ठीक है। सो ही इज गिविंग हिज सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न द फूड फॉर हिज फैमिली, ठीक है। तो इस तरीके का बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इन दिस देयर वेयर एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स। तो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, ना कि गुड्स का मनी के साथ, ठीक है। ग्रेन्स वेर एक्सचेंज इन लिeu ऑफ वर्क डन और ऑयल, ठीक है। सॉल्ट, हनी एंड मिल्क वेर एक्सचेंज फॉर ग्रेन्स, जो जिसके पास अवेलेबल है, ठीक है। हम ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं था कि भाई साहब जूतों का कीमत हम बकरी से ही लगाएंगे या बकरी का कीमत भाई साहब हम घोड़े से ही लगाएंगे। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं था। जिसकी जो जरूरत है और जिसके पास जिस चीज का सरप्लस है, अगर इसको अपन बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। ये जो बार्टर सिस्टम है ये भाई साहब डबल कोइंसिडेंस, ये किस प्रिंसिपल पे चलता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जिसको अपना जूता देना है उसके पास एक डिमांड होनी चाहिए बकरी की, ताकि सामने वाले का भी वही उसको देना है, बकरी देना है और जूते का डिमांड होना चाहिए। जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर सामने वाले को बकरी देना है लेकिन उसको जूता नहीं चाहिए, तब इन दोनों में धंधा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। ए के पास बकरी देना है, सॉरी जूता देना है और बकरी लेनी है। बी के पास बकरी देना है और जूता लेना है। अगर ये है तो ही दोनों में धंधा हो सकता है।
एक का अगर डिमांड कुछ और है तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज द डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम वाज मैनेज बाय डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो ये धंधा डिफिकल्ट बनाएगा, ठीक है। आपको उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको देने के लिए वो प्रोडक्ट हो जो आपको चाहिए, और जिसको लेने के लिए वो प्रोडक्ट हो जो आपके पास हो। तो ये डबल फुलफिलमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन बार्टर सिस्टम बोलते थे। देयर वाज नो करेंसी यूज्ड इन दिस ट्रेड। इवन टुडे वी सी ट्रेडर्स who exchange utensils in lieu of old clothes, but this creates problems for estimating a proper price. अभी जैसे समझ लो उसके पास एक यूटेंसिल है, उस यूटेंसिल का एक प्राइस है, चलो हमको मालूम है 50 रुपए का, 60 रुपए का, जो भी, ठीक है। लेकिन वो बोलेगा अगर 2 कपड़े चाहिए या 5 कपड़े चाहिए या 10 कपड़े चाहिए, तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, है ना। किसी यूटेंसिल का, किसी बर्तन का फिक्स प्राइस या लेबल आप लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन कितने कपड़े चाहिए उसका कोई फिक्स नहीं है ना, वो जितना बोले, ठीक है। ओके, सो ये एस्टिमेशन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बार्टर सिस्टम में एस्टिमेशन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, और दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉपर एस्टिमेशन, ठीक है। Earlier, two such problems were encountered. As a result, the use of currency started. जिसके वजह से करेंसी स्टार्ट हो गया। तो अभी जो कुछ भी होगा भाई साहब आपके पैसों का साथ मूल्यांकन होगा उसका, ठीक है। Today in this modern age, trade is carried out with the help of currency only, but barter system is still prevalent to a small extent in remote areas amongst the tribal people. कहीं कहीं पे ट्राइबल लोगों में बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि उसके पास क्या है देने को, ठीक है। वो क्या चीज, जैसे जो लोग हनी का काम करते हैं, तो मतलब ऊपर जाके मधुमक्खी के छत्ते को काटना पड़ेगा, 2 डंक उन लोग मारेंगे, तो ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। जो लोग हनी बेचते हैं, कोई नारियल तोड़ने वाला रहेगा, तो उसको भी वैसा एक नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ के नारियल को काटना पड़ेगा। तो हो सकता है इन दोनों में बहुत दिनों से धंधा चलते आ रहा हो। तो ऐसा बार्टर सिस्टम अभी भी ट्राइबल एरियाज में है, जहां पे मनी का उतना ज्यादा पहुंच नहीं हुआ है, ठीक है। बट आपका बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट जा चुका है। नाउ मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी देखो दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड। आप जब कोई सामान लेते हैं, चाहे सब्जी हो, ग्रोसरीज हो, चाहे कोई भाई साहब आपका प्रोडक्ट हो, जूता, कपड़ा लत्ता जो भी है, अगर आपने उसको पैसों से लिया तो इसको अपन बोलते हैं विजिबल ट्रेड। आपको दिख रहा है कि आपने पैसे दिए और उस पैसे के एक्सचेंज में गुड्स दिए, इसको अपन बोलेंगे विजिबल ट्रेड, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, इनसे आप उनकी सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली परचेजिंग देयर सर्विसेज। ये इनविजिबल ट्रेड है, क्योंकि सर्विस आपको नहीं दिखेगा। डॉक्टर ने आपको टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, उसने भाई साहब अपनी स्टडी की है, उसके बाद वो ऑथराइज है आपको टैबलेट्स देने के लिए। कोई लॉयर भाई साहब ऑथराइज है आपका केस लड़ने के लिए, उसको नॉलेज है। कोई सीए है, वो आपका अकाउंटिंग करके दे रहा है, ठीक है। ये सब सर्विसेज है। ये आपको डायरेक्टली गुड्स का एक्सचेंज नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि पैसा तो जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, सर्विसेज। यू आर नॉट गेटिंग गुड्स, ठीक है, यू आर गेटिंग सर्विसेज इन एक्सचेंज। दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नोन एज इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नोन एज विजिबल ट्रेड। यहाँ पे आपने पैसा दिया, गुड्स आए, यहाँ पे आपने पैसा दिया, सर्विसेज आए, ठीक है। दिस इज नोन एज इनविजिबल ट्रेड, दिस इज नोन एज विजिबल ट्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो इन दी अबव इंस्टेंसेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। जहां पे प्रॉपर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे विजिबल ट्रेड। ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एज इनविजिबल ट्रेड। इसको अपन बोलेंगे इनविजिबल ट्रेड। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितना गुड्स है, ठीक है। जो लोग बहुत बड़ा, जैसे होलसेल, आपको समझ में आता है, होलसेल मतलब भाई साहब बहुत बड़े क्वांटिटी में जब आप गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, उसको अपन बोलेंगे होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ ट्रेड रीजन। अभी भाई साहब ये कितना क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स से डील करता है, रिटेल ट्रेड कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स से डील करता है। समझ में आ रहा है? होलसेलर आपको मालूम है क्या होता है, बहुत बड़े क्वांटिटी में जो लोग, आप अगर किसी होलसेलर के पास जाएंगे तो छुट्टे में चीजें नहीं देगा वो, ठीक है। जैसे समझ लीजिए जो लोग मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स में होते हैं, अगर आप किसी ये मार्केट में गए, किसी से आपने 1 किलो आलू लिया, आधा किलो आलू लिया, लेकिन अगर आप किसी होलसेलर के पास जाएंगे तो पूरे गोनी लेनी पड़ेगी, आपको 1-2 गोनी लेनी पड़ेगी। आप वहां पे जाकर बोलेंगे 1 किलो आलू दे तो भले ठीक है। तो ये होलसेल ट्रेड होता है, ठीक है। ये रिटेल ट्रेड मतलब जो छुट्टे व्यापारी होते हैं। दूसरा होता है भाई साहब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रेड रीजन। हो गया क्या आप लोगों का? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग।
ये लीजिए, एफएल कीजिए, जमा कीजिए और घर में जाके चैन की सांस लीजिए। चलिए, डोमेस्टिक इंटरनल ट्रेड। डोमेस्टिक इंटरनल ट्रेड मतलब एक कंट्री के दायरे में जो ट्रेड होता है। इंटरनेशनल एक्सटर्नल ट्रेड, तो आपके कंट्री के दायरे में जो ट्रेड होता है उसको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, अगर वो बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपके एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे आपके बहुत सारे जो मैंगोज हैं वो इंडिया के बाहर जाते हैं, बहुत सारे हाई क्वालिटी एप्पल्स हैं वो इंडिया के बाहर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, सो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अगर हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को देखेंगे तो पहला आता है भाई साहब आपका होलसेल ट्रेड। ट्रेडर्स बाय कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे ये ट्रेडर्स जो है, वन और टू में सेग्रीगेट करके दे दीजिए भाई साहब फटाफट से। ट्रेडर्स बाय कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल में ये कमोडिटीज को बाय करते हैं, डायरेक्टली बॉट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स से भाई साहब खरीदते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। These commodities are also sold on a large scale to retail traders, retail traders को ये बेचते हैं भाई साहब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होलसेल ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से ये बहुत बड़े पैमाने पे गुड्स को खरीदते हैं और रिटेलर्स को बेचते हैं, सो दीज आर नोन एज होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडर्स बाय गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, farmers, etc. For example, the orchard owners of mangoes or oranges sell their entire production to wholesale traders. तो ये भाई साहब होलसेल ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है, क्लियर है? हो गया, जल्दी 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 फटाफट। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड मतलब छुट्टे व्यापारी जो होते हैं, आप अगर देखोगे जो छोटे मोटे आपके दुकान है आपके लोकेलिटी में, वो सब रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो ये रिटेल ट्रेडर है। व्हेन द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल इट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, देन इट इज नोन एज रिटेल ट्रेडिंग। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस इन दिस केस, ये बहुत बड़े बल्क में गुड्स को नहीं बेचते हैं, ठीक है, ये छुट्टे व्यापारी हैं, मतलब ये आपको कम, जैसे आपके जो इंडिविजुअल यूजर्स के लिए जितने गुड्स लगेंगे उसको बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, वेजिटेबल वेंडर्स इन मार्केट्स एक्सेट्रा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? According to the extent of region, the buying and selling of goods happens at various levels. On that basis, trade can also be divided into local, regional, national और international trade, ठीक है। तो पहले भाई साहब आपका आता है डोमेस्टिक, जिसको अपन इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। दिस ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री में भाई साहब, जमा कीजिए भाई साहब, कहा बस जल्दी जल्दी फटाफट, अभी तो हो गया था। चलो चलो जमा करो जल्दी। भाई देखो, अभी तुम इसको भाई साहब सजा रहे हो। भाजपा, स्टेपलर क्या किए, खा गए, यहाँ पे तो था। जल्दी जल्दी जल्दी। जाइए आप लोग जाइए। सृष्टि, अरे क्या हुआ? अपने कैचिंग कैपेबिलिटीज पे भरोसा नहीं है तुमको, क्या कर रही हो ऐसे? हाँ, अरे अभी तक दिया नहीं है। कौन सा है भाई साहब? जल्दी 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 करो यार, कौन सा है? अरे ये वाला लास्ट वाला है ना? प्लीज का है, और तुम्हारा ले लिया फोन?
Oh, wow. ओके, सो आपका डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड जो आपके पास विद इन द सेम कंट्री जो ट्रेड होता है उसको मतलब आपके जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है इस टाइप के ट्रेड में वो देश के बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। द साइज ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री। किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा साइज है, कैसे जोग्राफिकल लोकेशन है, ये सब सारी चीजें भाई साहब मैटर करती हैं, ठीक है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, मार्केटिंग सिस्टम lead to large scale internal trade. In India, factors like diversity in geographical conditions and high population also affect domestic trade. ठीक है, तो इंडिया में भाई साहब कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट होती है? हाई पॉपुलेशन, ठीक है, ये डोमेस्टिक ट्रेड को इम्प्लीमेंट करता है। अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। कितना ज्यादा आपका डोमेस्टिक ट्रेड होता है वो काफी बड़े पैमाने में आपके कंट्री के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। इफ देयर इज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ the trade will also be more, thus there is a positive relation between economic growth and trade, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका कंट्री के दरमियान ही ट्रेड होगा उतना ज्यादा भाई साहब आपका डोमेस्टिक ट्रेड बढ़ेगा और कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मींस गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्रीज, ठीक है। सम कंट्रीज प्रोड्यूस कौन कुछ For example, crude oil in Saudi Arabia, Kuwait and wheat production in USA, Canada, etc. अभी देखो wheat जो है वो यूएसए में सरप्लस में है, कनाडा में भी वो यूएसए मतलब आपका सरप्लस में प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस होता है। ये व्हीट वो दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। उनके पॉपुलेशन को जितना व्हीट चाहिए उसको रखकर बाकी का वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, मस्कट, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, ठीक है। दे मेजरली एक्सपोर्ट ऑयल विच इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। So these products are sent to countries having demand for those goods. This leads to the beginning of the international trade. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। When international trade takes place between two countries, it is called bilateral trade. अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा हो, ठीक है, so two means bi, so this is bilateral trade. When the international trade is happening between two countries, it is known as bilateral trade. When it occurs between more than two countries, it is called as multilateral trade. अगर दो कंट्रीज के बीच में आपका बिजनेस हो रहा है या ट्रेड हो रहा है उसको अपन बोलेंगे बायलैटरल ट्रेड। अगर दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है किसी प्रोडक्ट या सर्विस में, सो देन वी विल कॉल दिस एज मल्टीलैटरल ट्रेड। क्लियर है? आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्सपोर्ट मतलब आप भाई साहब अपने गुड्स को जब बाहर भेजते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट मतलब जब आप बाहर के गुड्स को अंदर लाते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ कंट्री बाइज दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर स्केर्स इन देयर ओन कंट्री, जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ऐसी चीजों को जब हम खरीदते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंपोर्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज इंपोर्ट। व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस एक्सेस गुड्स, और जो हमारे पास में एक्सेस है जब हम उसको बेचते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट, ठीक है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये अगर आपका देखो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट आपका ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब क्या है? आपका फैमिली में ऐसे समझ लीजिए कि आपके फैमिली के खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। समझ में आ रहा है? तो वो फैमिली डगमगाएगी, वैसे इकोनॉमिकली इंबैलेंस रहेगी। इसी तरह से देश का भी यही हाल होगा। अगर किसी देश में इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब आप ज्यादा खरीद रहे हो और बेच कम रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब आपका बेचना हुआ ना, ठीक है। तो ये आपका दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको अपन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। When the value of imports is more than the value of exports, it is called unfavorable balance of trade. अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा कंट्री का, ठीक है। ओके, अगर आपका ऐसा है वैसा फेवरेबल, मतलब आपके इंपोर्ट्स कम है, आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, तो उसको अपन बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होना चाहिए आपका भाई साहब, इनकम ज्यादा होना चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इसको अपन बोलेंगे बैलेंस। जितना इंपोर्ट उतना ही एक्सपोर्ट अगर होता है किसी कंट्री का,
तो उसको अपन बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये आपका परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अभी देखो संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है। संगठन की जरूरत, जैसे मैंने आपको बोला कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ये सब के सब ऑयल बेच रहे हैं, तो ये समझ लो आपका मस्कट हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इतनी जितनी तमाम कंट्रीज हैं वो ज्यादा करके ऑयल को बेचते हैं। ये जो ऑयल है ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर किसी कंट्री ने अपने ऑयल का दाम कम कर दिया तो सारे जितने भी बाकी कंट्रीज है वो उससे ही ऑयल लेंगे, उसका ही प्रॉफिट होगा। तो ये एक भाई साहब टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी धंधे में हम एक कॉमन चीजें रखें। आप अगर किसी जेरोक्स सेंटर में जा रहे होंगे, आपको दिखेगा कि भाई साहब जेरोक्स का इतना 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 इतना, कौन डिसाइड करता है? हु इज द वन डिसाइडिंग इट? ठीक है, जेरोक्स कराने का इतना, प्रिंट कराने का इतना, ये सब लिखा रहेगा, कलर प्रिंट का इतना, कलर जेरोक्स का इतना, ये सब लिखा रहेगा। कौन डिसाइड कर रहा है? इनका संगठन डिसाइड करता है। हर एक चीज का एक संगठन होता है, ठीक है। सो दे आर द वंस हु आर एक्चुअली डिसाइडिंग ऑन इट, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेड के भी संगठन होते हैं, ठीक है। Carrying out trade at an international level is a more complex process than domestic trade. Trade takes place between two or more nations. Factors like economy of the country, government policies, market laws, judicial system, currency, language, etc. influence the trade. The political relations between two countries also influences the trade between them. Sometimes the obstacles in the way of trading affect the mutual relationship adversely. तो आप जितना भाई साहब बाधाएं उत्पन्न करेंगे किसी ट्रेड को होने में, उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। टू अवॉइड दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस केम अप। तो ये भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिफाई द प्रोसेस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक स्टैंडिंग। सम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस वेर फॉर्म्ड। दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुवर्ड द फैसिलिटेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द डिटेल्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन गिवन। क्या क्या है भाई साहब आपका, देखो जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, ओपेक है, ठीक है। ये सारे के भाई साहब एक एक सिंबल होता है इनका, ये लोगो है भाई साहब, दीज आर बेसिकली लोगोस। कहां पे ये स्थित हैं, वेयर आर देयर हेडक्वार्टर्स, और इनके भाई साहब एम्स या फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, क्या क्या एम्स या फंक्शंस हैं, ओके। सारी चीजों को देखो, ये अगर हम कोई, देखो आप जब मार्केट में जाते हैं ना, ठीक है, तो आप समझिए किसी वेजिटेबल वेंडर के पास गए, किसी सब्जी वाले के पास गए, उसने भाई साहब आलू बोल दिया आपको 20 रुपए किलो है। किसी दूसरे के पास गए, उसने बोला 25 रुपए किलो है। किसी तीसरे के पास बोला तो उसने बोला 21 रुपए किलो है। ऐसा भाई साहब मनमानी है। क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट चैलेंज और यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में ऐसा नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, उनका मूल्यांकन बड़ी प्रॉपर तरीके से होना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होना है, क्योंकि ये भाई साहब एक कंट्री के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, ये डिसीजन, ठीक है, ओके। Importance of marketing. Modern industrial social fabric, globalization, and availability of abundant choices, alternatives of the products is the structure of today's business world. ठीक है, तो मार्केटिंग भाई साहब क्या होती है? What is marketing? ठीक है, in this context, the existence of marketing system for trade is very important. तो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके ट्रेड के लिए, ठीक है। आप किसी भी चीज का अगर मार्केटिंग ठीक से करेंगे तो वो सब तक पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बहुत आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने उसकी मार्केटिंग नहीं की है, आपने उसका एडवर्टाइजिंग नहीं किया है, आपने उसको प्रॉपर्ली पब्लिसिटी नहीं की है, तो वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। थ्रू मार्केटिंग वन कैन इंक्रीज बिजनेस सिस्टमैटिकली। द प्रोडक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड all at once on a large scale. The product can reach a large number of consumers. The selling price of the product also increases. ठीक है, इन सबसे बस सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होता है। Also, defective products can be recalled from the market. Therefore, in today's era, marketing is a vital part of a trading system. ठीक है, तो मार्केटिंग आपका भाई साहब एक वाइटल पार्ट हो गया ट्रेडिंग सिस्टम का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। Advertisements make the customers feel the need to buy the goods are on the rise. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट्स भाई साहब होते हैं आपके, advertisements making the customers feel the need to buy the goods are on the rise, reaching maximum customers, attracting consumers to the products and making consumers buy the products are the objectives behind them. ये सब भाई साहब आपके objectives हैं, ठीक है। In recent times, information technology and media have affected the marketing systems deeply because of the revolution in the field of information technology. ठीक है, the whole world has become a big market. तो आपका ये पूरा वर्ल्ड है, this has become a big market. Through internet we can get information about the production taking place in various countries. अलग अलग कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन जान सकते हैं। This makes numerous options available to customers. ठीक है,
आज की तारीख में भाई साहब जैसे अगर इतना चैनलाइज हो गया है चीजें, आपने अगर किसी आपको समझ लो कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, लेट्स से यू वांट अ प्रोडक्ट, आपने कहीं पे उसको सर्च करने की कोशिश की, आप देखोगे अपने आप ही फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आपको वो प्रोडक्ट आने लगेगा। आपने जबकि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं की है। समझ लीजिए अमेज़न में गए आप, ठीक है, और अमेज़न में कोई प्रोडक्ट आपने ढूंढने की कोशिश की, खरीदा या नहीं खरीदा वो आप बात की बात है। लेकिन द मोमेंट यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट, ऑल द अदर एप्स विल कम टू नो अक्रॉस इट, ठीक है, और वो आपको भाई साहब फेसबुक या इंस्टाग्राम के एड्स में आपको वही प्रोडक्ट्स शो करेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी कंड्यूसिव वे ऑफ मार्केटिंग, मतलब आपकी सोच को वहीं तक रख रहे हो लोग, दूसरी चीज पे जाने ही नहीं दे रहे। क्या आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए? नहीं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, कहाँ से मिल सके, कितने में मिल सके, क्या फीचर्स हैं, ये आप इंटरेस्टेड हैं, आपने डिसाइड कर लिया है। आपने जैसे ही एक सर्च इंजन में जाकर उसको सर्च करने की कोशिश की, बाकी जितने भी साइट्स हैं वो आपको थ्रो करेंगे उसका इंफॉर्मेशन, मजबूर कर देंगे आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, ये है आपका मार्केटिंग, ठीक है, क्लियर है। सो इन रिसेंट टाइम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया हैव अफेक्टेड द मार्केटिंग सिस्टम डीपली because of the revolution in the field of information technology. The whole world has become a big market. पूरा हमारा दुनिया एक बिग मार्केट हो चुका है, ठीक है, कहीं से भी प्रोडक्ट्स आप ला सकते हैं, कहीं पे भी प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी जो होती है राजस्थान एरिया में वो मिलता है, ठीक है, और उसको अभी तक हमने भाई साहब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया भी नहीं था, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी के साबुन बनाकर आज की तारीख में बेचा जा रहा है, और एक साबुन पे $1000, ठीक है, इतना हम इनकम कर रहे हैं। आप समझिए मुल्तानी मिट्टी का एक साबुन, उसको भाई साहब यूएस में क्रेज है मुल्तानी मिट्टी का, ठीक है, लोगों ने इसको समझ लिया, और इंडियंस भाई साहब इसको पैकेजिंग करके मस्त में उस मुल्तानी मिट्टी को जिसको जिसको आज के पहले हम फेंक रहे थे, ठीक है, जिसका आज के पहले कोई वजूद ही नहीं था, आज भाई साहब एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। इसी मुल्तानी मिट्टी को इफेक्टिवली पैकेजिंग करके हम भाई साहब अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे लोग यूएस में इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ द मार्केट इज। आज की तारीख में आपको पोटेंशियल समझना है क्या है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पॉपुलेशन का क्या कुछ फायदा उठा सकते हैं आप? तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे, हमारा जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गया है ना, वैक्सीनेशन हो गए हैं भाई साहब, आपके बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज में आपका इंप्रूवमेंट हो गया है। सो दीज थिंग्स हैव हैपेंड, सो ड्यू टू दिस द डेथ रेट्स हैव डिक्रीज। अगर आपके डेथ रेट्स डिक्रीज होंगे तो क्या होगा भाई साहब? व्हाट विल हैपन? पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। कौन सा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा? जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा, है कि नहीं? ठीक है, पहले हमारे इंडिया में हमारा एवरेज एज हुआ करता था 40 टू 45 ईयर्स, आज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स को वो टच कर रहा है, ठीक है। तो जितना हमारा मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेंगी, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और इस एल्डरली पॉपुलेशन में आज की तारीख में नोटिस किया जा रहा है कि भाई साहब इनको देखने के लिए कोई नहीं है। ऑब्वियसली भाई साहब सबको अपना कमाई धमाई करना है, सबको घर से बाहर निकलना है, तो क्या इनके लिए हम बहुत सारा कुछ एल्डरली केयर में कर सकते हैं? देयर इज अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी आउट देयर। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मार्केटिंग फटाफट होता है, ठीक है। इतने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केटिंग करने के कि उसका अगर आपने भरपूर फायदा उठाया तो आपको मुनाफा भरपूर हो सकता है, ठीक है। This makes numerous options available to customers. It is due to internet that customers can use facilities like online trading, e-marketing. ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप बैठे बैठे घर पे, ठीक है। पहले आप भाई साहब शेयर्स खरीदने के लिए मुंबई जाते थे, आज आप बैठे बैठे शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप भाई साहब ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ई मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप आराम से भाई साहब बैठे बिठाए कर सकते हैं। तो एन इनविजिबल फ्लो डेवलप्स when a product goes from producer to consumer. The commercial functions involved in this flow are collectively called marketing. The price of a commodity, sales, promotion, advertising and distribution are the major components of marketing. तो एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, अभी इस प्रोडक्ट का भाई साहब आपने क्या किया है? प्रोडक्शन, इसको क्लासिफाई किया, इसकी ब्रांडिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, फिर पैकेजिंग कर दी, फिर इसको प्राइस दिया, इसका प्रमोशन किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। दिस इज द चैनल दैट इज देयर, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल समझ लो राइस है भाई साहब, अभी राइस में आपके बासमती राइस होता है, ठीक है, अखा जो राइस बोलते हैं हम, ब्रोकन राइस होता है, दुबार राइस होता है, नेम ऑफ द कंपनी, लोगो, नंबर, ठीक है, डिटेल्स अबाउट द क्वांटिटी, राइस ऑफ प्रोडक्शन,
फिर आपने एडवर्टाइजमेंट क्या किया है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूशन, अट्रैक्टिव पैकेजिंग। कभी कभी भाई साहब प्रोडक्ट में दम नहीं है लेकिन प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है, लोग उसको देखकर खरीद लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन इफ अ प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज यूजिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आज की तारीख में ये बहुत क्योंकि आपका ऑनलाइन का जमाना है, तो इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, साथ ही साथ हमको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी मिलती है हर चीज के बारे में, ठीक है। तो if a product is advertising using incorrect information, अफवाहें भी फैलती हैं, fraudulent means और making exaggerated statements, ठीक है। अगर exaggerated statements, आप ये भाई साहब सूप पी लीजिए आप टॉपर हो जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। एकदम एग्जाम के पहले किसी ने रिलीज कर दिया भाई साहब ये सूप पी लीजिए भाई साहब आप टॉपर हो जाएंगे, ये तो फालतू की चीजें हैं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, टू चीट कंज्यूमर्स पॉइंटिंग द आउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अगर आपने भाई साहब किसी दूसरे कंपनी को तौहीन करने की कोशिश की, समझ लो भाई साहब पेप्सी ने अगर भाई साहब यू नो कोको कोला को बदनाम करने की कोशिश की, पेप्सी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया कोको कोला बेकार है, कोई अगर आकर ऐसे बोलता है तो पेप्सी कंपनी पे केस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स, देन एडवर्टाइजमेंट्स टेंड टू लूज आवर ट्रस्ट मेनी अ टाइम्स, देयरफॉर while advertising it is necessary to follow rules and regulations। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है। इनफैक्ट जो लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जैसे समझ लो कोई सेलिब्रिटी है भाई साहब, ठीक है, और उनसे आप कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज करा रहे हैं, कल को उस प्रोडक्ट में कुछ खराबी निकला तो इसको पकड़ा जा सकता है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। वो क्या विमल पान मसाला भाई साहब कौन खाता है, अजय देवगन, कौन खाता है, ओके, ठीक है। अगर विमल पान मसाला खाकर कल को कोई मर जाता है ना, तो अजय देवगन का गला पकड़ सकते हैं हम। नहीं, ऐसा है, नियम है, देयर इज अ लॉ, ठीक है। तो आपको इसीलिए जब आप जो सेलिब्रिटीज होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पैसा तो वो देखते ही हैं, देखते हैं कंपनी कितनी स्टेबल है, अच्छा आलतू फालतू प्रोडक्ट वाली पे वो लोग साइन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देयरफॉर व्हाइल एडवर्टाइजिंग इट इज नेसेसरी टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, द कंज्यूमर शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट्स। आपको भी कभी कभी देखो, आज की तारीख में कोई भी ऐरा गहरा नेत्तू गहरा भाई साहब ऑनलाइन में कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो क्या आप सारे इंफॉर्मेशन से ही चौकाचौंध हो जाओगे, क्या सारे इंफॉर्मेशन से ही आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, नहीं, यू हैव टू यूज योर रैशनलिटी, ठीक है। कोई अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट लेकर आ रहा है कि भाई साहब ये वाली चाय पी लो आप भाई साहब रातों रात इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो आपको भी ये समझना है कि ये कुछ फेक ही है, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ रैशनलिटी शुड बी देयर टू डिसाइड, ठीक है। दैट इज व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक है, ठीक है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली आपको अगर किसी ने झुलसाया है या आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले खुद अपने रैशनलिटी को ही यूज कीजिए, आपको उतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट द कंज्यूमर रिकॉग्नाइजेस हिज ओन नीड्स एंड बाइज गुड्स एट रीजनेबल रेट्स, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को उल्लू बनाना ज्यादा आसान है, ठीक है। आप अनपढ़ लोगों को इतनी जल्दी उल्लू नहीं बना सकते, पढ़े लिखे लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है ना भाई साहब, पढ़े लिखे भाई साहब, ठीक है। उनको उल्लू बनाना, आप देखोगे जितने भी ये फ्रॉडलेंट मार्केटियर्स होते हैं ना, ये ज्यादा करके पढ़े लिखे कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अनपढ़ लोगों के साथ इनकी नहीं जमेगी। अनपढ़ लोग पहले से ही मतलब उनको मालूम होता है कि भाई हम अनपढ़ हैं, हमको कोई भी ठग सकता है, तो वो पहले से ही अपना एक सावधान रहते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसा हम कॉन्फिडेंट है भाई साहब, ठीक है, उनको उल्लू बनाना आसान है, इसीलिए जितने भी फ्रॉडलेंट लोग होते हैं ना उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। और अक्सर हम इसी चपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि हम सारे डिसीजन, आप देखेंगे ज्यादा करके शिकायतें जो दर्ज होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो पढ़े लिखे लोगों से ही दर्ज होती है, ठीक है। और ये रीजन है, ठीक है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। क्या दिस वाज अबाउट ट्रेड, एनी क्वेश्चंस पीपल हैव? तो हाँ, कमी, डेफिसिट मतलब कमी, ठीक है, सरप्लस मतलब ज्यादा, ठीक है। किसी चीज का डेफिसिट होना मतलब कमी होना, किसी चीज का सरप्लस में होना मतलब एक्सेस में होना, ठीक है। क्लियर है? एनी मोर क्वेश्चन? नो, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।